Hey folks, Aksham this side from ACE IPM. The forms for JIPMAT are now finally open. In this video, let's just go through the important dates, the selection criteria for IIM Bodh Gaya as well as Jammu, and also fill the form for JIPMAT 2026. So without any further ado, let's begin. So going through the public notice quickly, the form is right now open. It will stay open till 10th of May. Payment can be made till 11th of May, 11:50 p.m. You have your correction window opening from 12th till 14th of May, 11:50 p.m. Of course, you fill the form in a way that you don't have to use it. The exam finally happens on 7th of June from 3 p.m. till 5:30 p.m. A 2.5 hour exam for 100 questions. No sectional timer, but there will be a sectional cutoff, which I'll discuss about in the next subsequent sections. So coming to IIM Jammu and their admission policy, so they will be having 140 seats in total for the IPM batch. In terms of the selection process, you have your scores of JIPMAT as well as your class 10th and 12th marks, which wasn't the case last year. So that is a change in IIM Jammu's admission policy this year. In terms of eligibility, you need to have passed your 10th and 12th with a minimum 60% aggregate. If in case you are coming in from SC, ST or PWD category, then this goes down to 55%. Double droppers are allowed in the case of IIM Jammu, not in the case of IIM Bodh Gaya. So IIM Jammu's admission criteria clearly states that you need to have passed your 12th in the year 2024-25 or you should be appearing for it in 2026. Your 10th needs to be passed in 2022 or later. So that is there in terms of IIM Jammu. There exists a sectional cutoff for IIM Jammu as well as Bodh Gaya. In the case of IIM Jammu, it is 50 percentile for general category across the three sections, which is very low. So I haven't seen many students, like in general, I have barely seen anybody clearing the overall cutoff but not clearing the sectional cutoff. But in other categories, this might become slightly of an issue. So just keep that thing in mind. Then in terms of how is the merit list prepared, 70% weightage is given to your JIPMAT score, your JIPMAT percentile. Then your class 10th marks carry a 15% weightage, 12th marks carry a 15% weightage. Whether they'll have a tier slab-based system where 90% plus gets 10 on 10, 15 on 15, and then subsequently, for every succeeding, every preceding slab, will it have lesser marks, or will they have it in a way that, they calculate the percentage out of 15 basis of the percentage that you've gotten from 10th and 12th is something that they haven't mentioned over here. But this is what we have in terms of merit list and everything in the case of IIM Jammu. Interestingly, this year they haven't mentioned anything about gender diversity. So we are not sure if they will not have it this year, or they have just forgotten to mention it and they'll apply it later. So that remains to be seen. But at least as of now, basis of the admission policy, there is no such section available here for any gender diversity. Now coming to IIM Bodh Gaya, the intake over there is going to be of 120 people. You also again have to pass your 10th and 12th with minimum 60% or 55% if in case you are coming in from SC, ST, PWD or transgender category. You over here need to have taken not more than a single drop, because in the case of IIM Bodh Gaya, it mentions that you need to have passed your 12th in the year 2025 or should be appearing for it in 2026. Your 10th need not be, passed in the year before 2023. So that is there in terms of IIM Bodh Gaya. Then your percentage for 10th and 12th needs to be calculated basis of the board's regulation. There is no such regulation that mandates you to not include your additional subject in the case of CBSE and ICSE. So for those boards, you will take an aggregate of all. And to be on the safer side, it is always better and recommended that you take the aggregate of all subjects only, unless and until in your mark sheet there is a percentage, total percentage, which is given, in the mark sheet itself, and that is what you put in the forms as well. Intake over here is 120. Admission is entirely through JIPMAT, so no per criteria for your 10th and 12th marks. There will be a sectional cutoff, which is going to be 30 percentile with your respective category. So अगर आप जनरल हैं तो जनरल के अंदर 30 percentile, अगर आप EWS हैं तो EWS के अंदर 30 percentile, so on and so forth. In the case of IIM Bodh Gaya, there exists, gender diversity criteria. That is 70% of the seats are gender neutral. उसमें your regular merit list based admission will happen, and basis of how many girls are already a part of that 70% pool is how they take a decision if they want to have a different cutoff for the remaining 30% of the seats for females or not. So that is how it works. There is no clear specific criteria कि इतना percent relaxation है या इतना percent advantage है. Depending on the open 70% seats, उसके अंदर कितनी लड़कियां आती हैं, उसके basis पे they then decide कि अगर females के लिए they need to publish a separate cutoff or not. So that is how it works.
So that is all in terms of the admission criteria for this year. So only change being कि आपका यहाँ पर I am Jammu के केस में your 10th and 12th scores are being taken into account and gender diversity का there hasn't been any mention in the admission policy as of now. Coming to I am Bodh Gaya Jammu's examination, which is JIPMAT, the form fill up for that. For that, you need to go on this website exams.nta.nic.in/JIPMAT. The link of which will be down in the description. You come on this website, you click on registration for JIPMAT 2026. It takes you to this page. You click on registration for JIPMAT again. दिस पेज ओपन्स अप. अभी के टाइम इन्फॉर्मेशन बुलेटिन नहीं आया है, आप वेट करें वो आए, उसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो तो. बट बाय एंड लार्ज दिस इज हाउ यू नीड टू फिल द फॉर्म. फी फॉर फिलिंग द फॉर्म इज एज फॉलोअर्स: 2200 फॉर जनरल, ओबीसी, एनसीएल, SC, ST, EWS, PWD, third gender, all of those will have the fee as 1100, and if in case you're a foreign applicant, it'll be 11,000 rupees. Now after that, what you need to do is you need to click over here, checkbox, and you need to click on click here to proceed. After that, this registration page will open up. You need to fill your name, mother's name, father's name. Keep in mind all of this should be as per your class 10th mark sheet. सो वो इन लोगों ने यहाँ पर मेंशन भी कर रखा है विद एवरी फील्ड. सो आपको सारा इन्फॉर्मेशन ये जो देना है अपना क्लास 10 मार्कशीट के हिसाब से देना है. एंड यू नीड टू अगेन कंफर्म द सेम ओवर हियर ऑल्सो. सो आपका नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, साथ में आपका डेट ऑफ बर्थ, योर जेंडर, प्लीज फिल इट ऑल प्रॉपरली. अगेन बात के लिए कोई दिक्कत ना हो तो सारा इन्फॉर्मेशन सही से जाना चाहिए. सब कुछ 10th के मार्कशीट के हिसाब से जाना चाहिए. यू नीड टू कंफर्म द सेम डिटेल्स अगेन ओवर हियर. यू नीड टू एंटर योर प्रेजेंट एड्रेस ओवर हियर. कीप इन माइंड प्रेजेंट एड्रेस में आप जो स्टेट चूज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आई हैव चोजन उत्तर प्रदेश ओवर हियर, तो मेरे पास जितने भी सेंटर के ऑप्शन आएंगे वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर आएंगे. आई कैन नॉट चूज एनी सेंटर आउटसाइड ऑफ यूपी. So for example, I am from Noida. Delhi is very close to me. I could have chosen Delhi as one of my preference, preferred centers, but I cannot because it does not fall in the jurisdiction of Uttar Pradesh. तो आप अपना प्रेजेंट एड्रेस डालेंगे, अपना वर्किंग ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर डालेंगे जिस पे आपको OTP भी आएगा जो आप चेक भी करेंगे रेगुलरली फॉर एनी अपडेट्स. एंड एन ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर शुड बी प्रॉब्ली योर पेरेंट्स. दैट इज हाउ इट वर्क्स. देन अगर आपका परमानेंट एड्रेस अलग है, डिफरेंट फ्रॉम योर प्रेजेंट एड्रेस, तो आप वो डालेंगे. अदरवाइज यू क्लिक ऑन सेम एज परमानेंट एड्रेस एंड दैट्स अबाउट इट. यू एंटर योर पासवर्ड, वट एवर यू वांट टू चूज. देयर आर सर्टेन criteria that you need to fulfill. That is, it needs to be so and so characters long, uppercase, lowercase, and all those things. Then you need to also have a security question and an answer to that question. Add your CAPTCHA, click on submit, and all these details will be then submitted. After these are submitted, you go on the review page. All the information will be available over here. What you need to do is कि सब कुछ एक बार चेक करना है, सब ठीक है नहीं है. I have verified all personal details. आपको यहाँ चेक कर लेना है. I have verified electronic communication. All those things आपको एक बार फिर से चेक बॉक्स क्लिक कर देना है. जब आप ये सारी चीज़ें कर दोगे, आई अग्री पे क्लिक करोगे, सबमिट एंड सेंड OTP टू वेरीफाई मोबाइल नंबर पे क्लिक करोगे तो OTP आएगा. आप वो फिल करोगे एंड योर रजिस्ट्रेशन वुड बी सक्सेसफुल. जब एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाएगा इज व्हेन योर फॉर्म फिलअप स्टार्ट्स. फॉर्म फिलअप के लिए आपके पास ये पेज ओपन होएगा. सो यू क्लिक ऑन फिलअप एप्लीकेशन फॉर्म. ऑल दीज पेजेस विल कम. आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स में जाएंगे, ये सारी चीज़ें आप पहले से डाल चुके हो तो इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस आपने नहीं करने हैं. यू क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट आफ्टर एंटरिंग द कैप्चा. हर पेज पे आपको कैप्चा भी मिलेगा. Personal details, again, most of these things are already entered by you basis of your your candidate's name, date of birth. all these things आपने पहले ही डाल दिया था रजिस्ट्रेशन के टाइम, तो आप वो चीज़ें एज सच यहाँ पर चेंज करने की कोई ज़रूरत है नहीं. योर नेशनैलिटी, योर स्टेट ऑफ रेजिडेंस, अगेन बेसिस ऑफ योर स्टेट ऑफ रेजिडेंस आपका सेंटर्स विल बी अलॉटेड. योर कैटेगरी, अगेन अगर आप जनरल के अलावा कोई भी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो तो उसका रेलिवेंट आपके पास सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए. इफ़ यू आर डायबिटिक और नॉट, द प्लेस ऑफ रेजिडेंस, अगेन ये सारी चीज़ें जो हैं. अब अगर आप कंफ्यूज हो, आप अर्बन शहर में रह रहे हो या रूरल शहर में रह रहे हो, तो दैट इज़ टोटली फाइन. आप कोई भी एक चूज़ कर सकते हो. दीज आर ऑल क्वेश्चन एयर जस्ट फॉर देयर बेसिक स्टैट्स देखने के लिए कि ठीक है व्हाट इज़ द डेमोग्राफी ऑफ पीपल अप्लाइंग फॉर दिस. अदर देन दैट इसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं होता. इसके बेसिस पे आपका एडमिशन कैंसिल नहीं होएगा. सेम इज़ द केस विद एनुअल फैमिली इनकम. ऑफ कोर्स अगर आपने EWS या NC OBC चूज़ करा है तो दिस हैज़ टू बी लेस देन 8 lakhs बिकॉज दैट इज़ द क्राइटेरिया. अगर आप वहाँ NC OBC EWS डाल रहे हो, यहाँ आप अपना इनकम इज़ 8 lakh एंड अबव डाल रहे हो, दैट मीन्स कुछ तो आपने यहाँ पर गड़बड़ करा है. तो कीप दैट थिंग इन माइंड. योर मोड ऑफ प्रिपरेशन अगेन इज समथिंग जो कि इज जस्ट फॉर देयर डेमोग्राफिक चेक. तो आप वो चीज़ यहाँ पर डालेंगे. उसके बाद इफ़ इन केस यू आर अप्लाइंग एज अ PWD कैंडिडेट, तो आपको यहाँ पर वो यू नीड टू आंसर दैट ओवर हियर एंड ऐड योर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स.
देन आइडेंटिटी डिटेल्स, इफ इन केस यू हैव एन आधार कार्ड जिसके अंदर आपका मोबाइल नंबर इज रजिस्टर्ड, तो आप डायरेक्टली अपना आधार कार्ड वहाँ से वेरीफाई करा सकते हो या फिर डिजी लॉकर से करा सकते हो। इफ इन केस दैट इज़ नॉट अ पॉसिबिलिटी, पहली चीज़ तो प्लीज़ अपने आधार कार्ड में नंबर अपडेट करा लें। इट इज़ एनीवे वेरी यूज़फुल, बाद में आगे भी काम आएगा, आपके सीवीटी के फॉर्म में भी लगा ही होगा। बट वो नहीं है तो आप अपना पैन नंबर या फिर आप अपने पासपोर्ट या किसी बाकी डॉक्यूमेंट से भी वेरीफाई कर सकते हैं। मैंने फॉर द टाइम बिंग पैन कार्ड से कर रखा है, बट आइडियली आपको आधार कार्ड से ही करना चाहिए इफ दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी। वंस यू डू दैट यू क्लिक ऑन प्रोसीड, फिर आपको आ जाएगा रजिस्टर फॉर अपार आईडी इफ इन केस यू हैव इट विच इज़ योर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। अच्छी बात है, येस करके आप उसकी डिटेल्स डाल सकते हो। नहीं भी हैं तो नॉट एन इशू, उसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं होगी। यू कैन जस्ट सबमिट इट एज नो, click on submit. Examination cities, as I mentioned, I have chosen उत्तर प्रदेश as my domicile or as my present address, तो उसके बेसिस पे ही मुझे सेंटर्स दिख रहे हैं। सो उत्तर प्रदेश के अलावा मेरे पास कोई भी स्टेट का ऑप्शन नहीं है, उसके बेसिस पे मैंने यहाँ पर अपने सारे सेंटर्स चूज़ कर लिए हैं। अगेन माई मदर्स ऑक्यूपेशन, फादर्स ऑक्यूपेशन, क्वालिफिकेशन, वो सारी चीज़ें, डेमोग्राफिक डेटा यहाँ पर डालना है जो आप अपने हिसाब से डाल देंगे, कैप्चा भरेंगे, उसके बाद आप क्वालिफिकेशन डिटेल्स में जाएंगे। यहाँ पर अगेन कीप दिस इन माइंड, 10th आपका हो गया होगा, यू क्लिक ऑन पास्ट, योर ईयर ऑफ अपेयरिंग 2024 इन दिस पर्टिकुलर फॉर्म्स केस, योर एग्जाम विच इज 10th और इक्विवेलेंट, अर्बन रूरल आप अपने हिसाब से डालेंगे। कौन सा स्कूल था, गवर्नमेंट नहीं था तो मोस्ट लाइकली प्राइवेट अनएडेड होगा तो आप डाल देंगे, और किसी कैटेगरी में फॉल करता है तो यहाँ पर आप लिख देंगे। योर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, आपका जहाँ भी स्कूल था उसका स्टेट डाल दीजिए, डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिए, कौन सा बोर्ड था वो लिख लीजिए, परसेंटेज में रिजल्ट आया था या सीजीपी में आया था वो डाल दीजिए, और यहाँ मार्क्स ऑब्टेन मार्क्स, उसके बेसिस पे परसेंटेज खुद कैलकुलेट हो जाएगा। कीप दिस इन माइंड दैट अगर आपके बोर्ड में कोई रेगुलेशन नहीं है तो आप सारे सब्जेक्ट्स को कंसिडर करेंगे। सीबीएसई आईसीएसई में कोई रेगुलेशन नहीं कहता है कि बेस्ट 4 बेस्ट 5 लेना है। दैट इज़ योर पासिंग क्राइटेरिया, दैट इज़ नॉट द क्राइटेरिया फॉर यू टू कैलकुलेट योर परसेंटेज। सो इन दैट केस आपको यहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स को कंसिडर करके ही अपना परसेंटेज कैलकुलेट करना है। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर जो होएगा 10th का वो डालेंगे, स्कूल नेम, स्कूल पिन कोड आप यहाँ पर डाल देंगे। सेम चीज़ 12th के साथ करनी है। ड्रॉपर हैं तो सारी चीज़ें लगेंगी, फ्रेशर हैं तो परसेंटेज नहीं देना है। अपेयरिंग डाल दिया बिकॉज आई एम अ फ्रेशर, 2026 इज़ द ईयर ऑफ पासिंग, अभी पास नहीं हुआ हूँ। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, प्रॉब्ली ये वाला वुड बी एप्लीकेबल टू मोस्ट ऑफ द सीपीएसई आईसीएसई स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पर ये डाल देंगे। एक और सेम ऑप्शन है, उसमें फिजिक्स और मैथ्स लिखा है, तो मे बी साइंस वाले बच्चे वो चूज़ कर सकते हैं, एंड जो साइंस के नहीं है वो बच्चे ये चूज़ कर सकते हैं। योर प्लेस ऑफ स्कूल, योर टाइप ऑफ स्कूल, क्वालिफाइंग एग्जाम स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, बोर्ड, ये सारी चीज़ें पहले भी हमने डिस्कस करी है तो सेम ही रहेगा। रिजल्ट मोड यहाँ पर हमने कुछ चूज़ नहीं करा है, हमारे को ऑप्शन भी नहीं दे रहा है। वाई? बिकॉज वी हैव चोजन कि हमारा अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, सो दैट इज़ वाई वो इन्फॉर्मेशन हमसे नहीं मांग रहा है। योर रोल नंबर, स्कूल नेम, स्कूल पिन कोड, ये सारी डिटेल्स आप डालेंगे। उसके बाद आप जाएंगे कैप्चर लाइव फोटोग्राफ में। अब कैप्चर लाइव फोटोग्राफ में वो आपको यहीं से फोटोग्राफ क्लिक करवाएगा। अगर आप लैपटॉप पे हो, वेबकैम नहीं चल रहा है, तो एक क्यूआर कोड आ जाएगा, यू स्कैन दैट क्यूआर कोड फ्रॉम योर फोन, क्लिक द लाइव फोटोग्राफ, एंड उसके बाद वो यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। कीप दिस इन माइंड, आपके फोटो में 80% ऑफ योर फेस शुड बी विजिबल, वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए, तो वो करके आप यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद एक बार लाइव फोटोग्राफ हो जाएगा तो डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने पड़ेंगे। उसमें आपको लगेगा आपका फोटोग्राफ, सिग्नेचर, अगर आपने आधार कार्ड ई आधार से साइन इन नहीं करा है, ओटीपी वेरिफिकेशन नहीं करा है तो आइडेंटिटी प्रूफ भी लगेगा। अदरवाइज उसकी ज़रूरत नहीं है, अगर आपने आधार डायरेक्टली अपलोड करा है, उसका ओटीपी दिया है तो। अब फोटोग्राफ के केस में इट विल बी 80% फेस विदाउट मास्क, ईयर्स शुड बी विजिबल, सन ग्लासेस या ऐसा कोई टिंट नहीं पहनना है। इवन अगर आई ग्लास पहने हैं तो दिक्कत नहीं होता है, अगर उसमें कोई ग्लेयर या रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है तो। और वो सब आपका 80% द फेस कवर करना चाहिए आपके फोटो में, एंड साथ ही में आपका वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ ये वाला अपना पुराना इमेज डाला है, आपका नया होना चाहिए विद इन द रिसेंट 6 मंथ्स, तो ऐसे आप इमेज को डालेंगे। आप पहले अपलोड करेंगे, उसके बाद वो आपको ऑप्शन देगा रीसाइज या फिर आपको उसे सेंटर करने का। जब आप वो कर लेंगे तो यहाँ एक्शन में एक बार सबमिट या फिर अपलोड जैसा कोई बटन आएगा, जब आप वो क्लिक करेंगे तब अपलोड होएगा, सिर्फ यहाँ से डाल देने से अपलोड नहीं होएगा। जब अपलोड हो जाएगा तो वो यहाँ पर ऐसे क्लिक हेयर टू व्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन देगा। सेम चीज़ सिग्नेचर के साथ करना है, वाइट बैकग्राउंड में चाहिए, जेपेग फाइल ही होनी चाहिए, 10 to 100 KB के बीच में ही होनी चाहिए। सो वो इन्फॉर्मेशन डाला है, बिकॉज मैंने पैन कार्ड से अप्लाई करा है तो मेरे को आइडेंटिटी प्रूफ भी मांग रहा है, अदरवाइज आपको नहीं मांगेगा। जब ये सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे तो आप फाइनल सबमिट पे आएंगे। फाइनल सबमिट के केस में आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये आपको वेरीफाई करनी पड़ेगी कि ये जो भी चीज़ें मैंने डाली हैं क्या ये सही हैं, नहीं हैं, कोई भी दिक्कत तो नहीं है। अभी फॉर्म भरने में आपके पास टाइम है, 10th ऑफ मई तक फॉर्म ओपन है, तो प्लीज़ मेक श्योर बहुत हड़बड़ी में, जल्दी में, यू आर नॉट फिलिंग इन एनी रैंडम और एरोनियस इन्फॉर्मेशन। इट शुड बी अ फॉर्म विच यू आर फिलिंग
टू द 100% ऑफ करेक्टनेस, तो कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। ऑल्दो आपके पास करेक्शन विंडो है, बट व्हाई आर यू वेटिंग फॉर दैट? आपको अभी से ही सब कुछ ढंग से अच्छे से फिल करते हुए चलना है। इंपॉर्टेंट चीज़ें जो फिल करनी है, आपका सारा जो बेसिक डिटेल्स है वो 10th मार्कशीट के हिसाब से होनी चाहिए। आपका जो एड्रेस है वो आपको इस हिसाब से डालना है जिस हिसाब से आपको सेंटर चाहिए, तो प्रेजेंट एड्रेस के बेसिस पे आपके सेंटर्स अवेलेबल होंगे। उसके बाद आपको 10th 12th के मार्क्स जो हैं एग्रीगेट ऑफ ऑल लेके चलिएगा। इवन अगर आपके पास एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं तो उन्हें भी कंसिडर करिएगा। अनलेस एंड अनटिल आपके बोर्ड का कोई स्पेसिफिक मैंडेट है, आपकी मार्कशीट के अंदर ही अलग से परसेंटेज लिखा हुआ है। अगर नहीं लिखा है तो मोस्ट लाइकली वो एग्रीगेट ऑफ ऑल ही चलेगा, इंक्लूडिंग सीबीएसई आईसीएसई। तो अब वो करेंगे। उसके बाद अपना ई आधार से वेरीफाई करा लेंगे अपने फॉर्म को, लाइव फोटो क्लिक कर लेंगे, डॉक्यूमेंट सही से अपलोड कर देंगे, फोटो वाइट बैकग्राउंड में होगा, 80% फेस विजिबल हो गया अलॉन्ग विद ईयर्स एंड चश्मे पहने हैं तो उस पर ग्लेयर नहीं होना चाहिए। वो सारी चीज़ें जब आप कर लेंगे तो आप यहाँ आई हैव वेरीफाइड पे सबको क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका फॉर्म यहाँ से आई एग्री करके फाइनल सबमिट हो जाएगा। एक बार फॉर्म सबमिट हो गया तो उसके बाद पेमेंट भी करना पड़ेगा, तो आप फिर पेमेंट करेंगे। जब पेमेंट हो जाएगा उसका वेरिफिकेशन आ जाएगा, इज व्हेन योर फॉर्म फिलअप इज डन। प्लीज मेक श्योर यू आर डूइंग इट एटलीस्ट 10 डेज बिफोर द फॉर्म क्लोजेस। सो आइडियली आप अप्रैल के अंदर ये बंद कर दें, फॉर्म सब कुछ सबमिट करके पेमेंट करके रखते हैं, बट इतना जल्दी भी नहीं करना है कि आज ही आज में कर दिया और आपने बहुत सारी गलतियां कर दी। सो प्लीज कीप दैट थिंग इन माइंड। इफ इन केस यू हैव एनी क्वेश्चन क्वेरीज प्लीज ड्रॉप इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं, यू वांट टू टेक योर प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल, यू कैन ऑलवेज चेक द एक्सेलरेट बैच। इट विल नॉट बी रेलेवेंट फॉर पीपल हु आर स्टार्टिंग देयर प्रिपरेशन नाउ, इट विल बी रेलेवेंट फॉर पीपल जो ऑलरेडी प्रिपेयर अभी तक कर ही रहे हैं, इवन इफ यू स्टार्टेड आफ्टर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस वर ओवर, बट अभी उन्हें एक बूस्ट इन स्कोर चाहिए, तो दैट इज वेयर आवर कोर्स विल बी रेलेवेंट। Thank you so much. All the very best, and I'll see you in the one. Till then, take care. All the best, and bye bye. Thank you.